Now second application of Gauss law is electric field due to charge infinite sheet. Okay, here sheet is 2D figure. Suppose this is a charge infinite sheet and we want to calculate electric field due to this sheet. Okay, by the use of Gauss formula. And we know that what is Gauss law? Gauss law tells us about the value of electric flux. Phi is equal to integration E dot A is equal to Q over epsilon naught over NA closed body. Okay, so this is our charge infinite sheet. Firstly we have to make it closed. Okay, here this is सिलिंड्रिकल फिगर. नाउ अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज शीट को क्या करेंगे, इस सिलिंड्रिकल फिगर के अंदर कन्वर्ट करेंगे सो दैट वी कैन अप्लाई Gauss law. फर्स्ट एम इज टू कन्वर्ट द बॉडी in closed form. Okay, so suppose this is a infinite charge sheet. Okay, and here this is the point, that is this is the area that is closed between these points. Suppose this is the area, and after calculating the electric field intensity at this area we will get due to charge electric field intensity due to charge infinite sheet. Here we are considering small element of this cross section. Okay, this is dA. अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है in this direction, so electric field will be opposite to charge distribution in this direction. Here in this cylindrical figure there are two sections. This is cross section and this is curved surface area. This is cross section and this is curved surface. Now here electric field direction is in this direction opposite to the distribution of charge, and this infinite charge sheet is a 2D figure. So here we will use surface charge density sigma, that is Q over A, and Q will be sigma into A, total charge. Okay, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे ही वैल्यू निकालेंगे हम, चार्ज की कितनी वैल्यू है. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए. अब यहाँ पे डायरेक्शन है E की इन दिस डायरेक्शन, एंड एरिया, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है तो एरिया विल बी इन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इन दिस डायरेक्शन, एंड बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो हेयर फ्लक्स विल बी ज़ीरो बिकॉज फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E and A. Cos 90 is 0 for curved surface. Okay, the case is opposite to the wire. वायर में क्या था, हमें क्रॉस सेक्शन पे वैल्यू फ्लक्स की ज़ीरो मिल रही थी, कर्व्ड सरफेस पे हमने फाइंड आउट की थी. शीट में क्या है, इनफाइनाइट शीट में हमें कर्व्ड सरफेस के ऊपर वैल्यू क्या मिल रही है, हमें ज़ीरो, और क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो इस क्रॉस सेक्शन पे वैल्यू कितनी होगी फ्लक्स की, E डॉट डी ए, and for this cross section this is also equal to integration of E dot dA. When we remove this integration of dA, EA, integration of dA क्या होता है A, and integration of dA is also A, is equal to क्या फॉर्म होता है, phi is equal to sigma, phi किसके इक्वल होता है हमारे पास, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के. ठीक है, दिस इज Gauss law. अब Q क्या है हमारे पास वैल्यू, सिग्मा इंटू ए. पुट द वैल्यू ऑफ Q सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट. 2EA, सिग्मा ए टू ए कैंसिल, E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ वायर. ओके, our third application is electric field due to charged spherical shell.
या तो हम इसको स्फेरिकल शेल बोल सकते हैं या फिर होलोस्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है। होलो मीन्स जो अंदर से क्या हो, खोखला हो। जो प्लास्टिक बॉल होती है हमारी होलो होती है, और जो वाटरमेलन होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड स्फीयर। इट्स थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल स्फीयर मीन्स होलोस्फीयर। हम यहाँ पे दो केसेस प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनसाइड, इन आउटसाइड। ओके, सपोज दिस इज ए होलोस्फीयर मीन्स स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल। अब होलो है, जैसे कोई प्लास्टिक बॉल होती है हमारे पास, प्लास्टिक बॉल अंदर से क्या होती है, होलो, अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है। सो इन दिस होलोस्फीयर वी कैन ओनली distribute charge only at its surface because inner part there is no matter present, and so there is no distribution of charge. Charge distribution is also on a surface, that can be a wire, that can be a surface, that can be a volume. Okay, so here this spherical shell or holosphere is the hollow in inside, and the charge distribution is possible only at the outer surface. Okay, अब this is a 2D figure. So here surface charge density, to calculate the charge sigma will be used. We know that surface charge density किसके इक्वल होती है, Q over A. Then sigma is equal to Q over 4 pi r square. Area of this sphere 4 pi r square. R is the radius of this sphere. 4 pi r square. नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज है हमारा बाहर जो प्रेजेंट है, अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो बाहर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 pi r square sigma. दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर. नाउ केस 1, we will calculate the electric field inside the shell. We know that from IDI we can calculate the electric flux inside the cell. We know that flux is equal to Q over epsilon naught. If there is no charge, Q will be 0, then flux also will be 0. We will prove this by using Gauss law. Suppose inside the shell there is another Gaussian sphere which have radius small r, and the outer holosphere has radius capital R. Okay, the charge is only at the outer surface because the shell is hollow from inside. Now radius, जो surface हम consider करते हैं inside the shell, जो dotted line में है उसको हम consider करेंगे Gaussian surface, so that here R is less than R. So according to Gauss law, flux at this Gaussian surface will be E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज इनसाइड क्या है हमारा, 0 है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं क्योंकि अंदर कोई भी मैटर नहीं है, तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा हमारे पास 0. सो ई इनसाइड क्या हो जाएगी होलोस्फीयर 0. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट केस सेकंड फॉर होलोस्फीयर. आउटसाइड द होलोस्फीयर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इनसाइड देयर इज नो चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0. आउटसाइड के लिए भी सिमिलरली हम आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन में कंसीडर कर लेंगे. जो हमारा ये स्टार्टिंग वाला स्फीयर था वो कैपिटल आर इनिशियली हम लेके चले थे. अब गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी हो गई, आर. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटसाइड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटसाइड, बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन. एंड हेयर द टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया था, जो आउटसाइड प्रेजेंट था कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा. यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा. ओके, अब क्या करेंगे, सिमिलरली वी विल अप्लाई दी गॉस लॉ. फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डी ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन. दिस इज क्यू यहाँ से. अब ई डॉट डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई डी ए कोस 0, ई डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा. कैंसिल आउट करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी ई की सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड द होलोस्फीयर. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.